हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं। आई एम CA विशाल जैन एंड टुडे आई एम हियर टू डिस्कस विथ यू द इम्पैक्ट ऑफ COVID-19 ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. As we all are aware of the rapid outbreak of COVID-19, that is coronavirus disease, and hardly we can find anything which is not impacted by this disease. The present scenario is very alarming and the situation is getting worse day by day. इस सिनेरियो को हम लोग दो एस्पेक्ट से देख सकते हैं. फर्स्ट एस्पेक्ट विल बी द हेल्थ ऑफ द पीपल एंड सेकंड एस्पेक्ट विल बी द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री. Obviously, health of the people is of prime importance, but we cannot ignore the economic conditions of the country as well. Obviously, we have to focus on the health of the people, as the saying goes by, health is wealth. So recently I was going through my LinkedIn network and I came across a blog by a great economist and a former governor of Reserve Bank of India, Mr. Raghuram Rajan, and he mentioned in his blog that India is going through its greatest emergencies since independence. Now you people must be wondering, how can this be a greatest emergency since independence? Since India as well as a global economy already faced an economic crisis in 2008-2009. But let me explain, that was more of a demand shock. What happens in a demand shock is the supply remains constant but the demand of goods and services falls and leading to fall in the prices of goods and services. Let's not dig into that. Let's compare the scenario then and now. Scenario then was people used to go to work, the financial sector was largely healthy and the government finances were sound. But we cannot see any of these things in the current scenario. The economy has come to a standstill statue. Let's not discuss the impact of COVID-19 on economy, but rather we are here to discuss the impact of COVID-19 on financial statements, which are the reflectors of the change in economy. Whatever changes are happening in the economy gets reflected in the financial statements. So we are here to discuss the impact of COVID-19 on financial statements. Let's divide our topic of discussion into three topics. First, impact on going concern assessment. Second, impact on accounting estimates. Third, impact on fair value measurement. Let's understand each one by one. हम लोग ने जैसा बताया कि इसको की इम्पैक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को हम लोग तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट विल बी गोइंग कंसर्न अजम्पशन, सेकंड इम्पैक्ट ऑन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, थर्ड इम्पैक्ट ऑन फेयर वैल्यू मेजरमेंट. चलिए एक एक करके सबको डिस्कस करते हैं. गोइंग कंसर्न अजम्पशन. सो व्हाट इज गोइंग कंसर्न अजम्पशन? गोइंग कंसर्न अजम्पशन एंटिटी के उस इंटेंशन को बोलते हैं जो एंटिटी ये इंटेंड करता है कि अपना बिजनेस को वो फ्यूचर में बंद करने की नहीं सोच रहा है. लाइक मीनिंग देयर बाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इस तरह से बनाया जाता है कि on the assumption that an entity is going concern and will continue its operation for the foreseeable future. So with the outbreak of COVID-19, how is this intention impacted? So इस COVID-19 के outbreak के कारण entities में significant economic deterioration हुआ है और फिर किसी-किसी entities में economic uncertainty increase हुआ है. Let's understand this with example. सो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के केस में उसका प्रोडक्शन या तो नॉर्मल कैपेसिटी लेवल से रिड्यूस हो गया है या फिर प्रोडक्शन पूरा ही शट डाउन हो गया है. तो इस केस में उस कंपनीज के फिक्स्ड कॉस्ट तो एज इट इज इनकर हो रहे हैं, वेरिएबल कॉस्ट रिड्यूस हुए हैं बट नॉट 100% टू सम एक्सटेंट. So in cases में उनका revenue will be less than the total costs. So इस cases में general rule of economics says if the revenue is less than total cost, so company should shut down the business. At least company should recover its variable costs. तो यहाँ पे कंपनी वो रिकवर जनरली नहीं कर पाएगी, तो वो कंपनी को केस टू केस बेसिस पे असेस करना पड़ेगा एंड कंपनी का उस इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी या डिटेरियोरेशन के अगेंस्ट कंपनी का क्या रिस्पॉन्स है वो अगेन आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. सिंस ये एक इंडिकेटर है जो दिखा रहा है कि गोइंग कंसर्न अजम्पशन आपका इंपैक्ट हो सकता है, सो इसको हर कंपनी को अपने केस टू केस बेसिस पे असेस करना पड़ेगा. लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. सी इंडिया एक ग्रोइंग कंट्री है और यहाँ पे फॉरेन के इन्वेस्टमेंट्स बहुत ज्यादा हैं.
तो अभी आउटब्रेक ऑफ कोविड-19 के कारण फॉरेन इन्वेस्टर्स ये देख पा रहे हैं कि अभी जो उसका रिटर्न्स है फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट वो बहुत ही वॉलेटाइल है, एंड इस वॉलेटाइल नेचर ऑफ रिटर्न्स के कारण वो लोग नर्वस हो जाएंगे एंड दे विल ट्राई टू पुल बैक द इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम इंडिया। एंड इफ दिस हैपेंस, तो जो इंडियन कंपनीज है विच आर हाईली डिपेंडेंट ऑन द फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स, ये उनके लिए एक मेजर सेटबैक होगा और इट विल बी एन इकोनॉमिक इंडिकेटर ऑफ द for impacting going concern assumption. So again, all these things entities have to assess on a case to case basis कि उसका going concern impact हो रहा है या impact नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो कंपनी का उसके लिए क्या response है, and the same thing which has to be disclosed in the financial statements. If there are events or conditions that may cast significant doubt on the entity's ability to continue as a going concern, disclosure would be required for the same with added focus on कंपनीज रिस्पॉन्स टू इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19। डिस्क्लोजर देना पड़ेगा कि इम्पैक्टेड है या नहीं है गोइंग कंसर्न, अगर इम्पैक्टेड है तो कंपनीज का क्या उसके लिए रिस्पॉन्स है। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक which is impact on accounting estimates. So accounting जो करती है कंपनी उसके लिए एक estimates बनाती है, वो एक मैनेजमेंट का जजमेंट पे बेसिस पे एस्टिमेट बनाती है। तो एस्टिमेट केस का बेसिस क्या होता है, फ्यूचर का फॉरकास्ट और बजट्स जो कंपनी बनाती है उसके अकॉर्डिंगली एस्टिमेट करती है कंपनी की। बहुत सारे एस्टिमेट्स होते हैं, क्या होते हैं हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। तो अभी आउटब्रेक ऑफ कोविड-19 के कारण जो फॉरकास्ट जो बजट्स बनाई थी वो सारे एक लिमिटेड रेलेवेंस के रह जाते हैं या उसका कोई रेलेवेंस ही नहीं रह जाता है, क्योंकि सारे फ्यूचर फॉरकास्ट और बजट सब चेंज हो जाएंगे कंपनीज के। तो उसमें कुछ कुछ अकाउंटिंग एस्टिमेट्स जो अभी इंपैक्टेड होंगे वो ये हैं: इम्पेयरमेंट ऑफ नॉन फाइनेंशियल एसेट्स, इन्वेंटरी मेजरमेंट, इनकम टैक्सेस, property, plant and equipment. Let's discuss this one by one. First is impairment of non-financial assets. सो इंड एस 36 क्या बोलता है कि एंटिटीज को अगर कोई इंडिकेटर ऑफ इंपेयरमेंट है तो इंपेयरमेंट टेस्ट करना जरूरी है एट ईच रिपोर्टिंग डेट। व्हाट इज रिपोर्टिंग डेट फॉर इंडिया? 31 मार्च। अभी 31 मार्च पास हुआ है तो ये असेसमेंट करना जरूरी होगा अगर इंडिकेटर है। तो अब ये असेस कैसे करें इंडिकेटर है या इंडिकेटर नहीं है? सी, आउटब्रेक ऑफ कोविड-19 के कारण अभी जो भी अमाउंट सब चीज इंपैक्टेड हुए हैं। तो फर्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं इम्पेयरमेंट लॉस हम लोग रिकॉग्नाइज कैसे करते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इम्पेयरमेंट लॉस का इंडिकेटर है या नहीं है। सो इम्पेयरमेंट लॉस के लिए इंड एस 36 ने बोला कि अगर रिकवरेबल अमाउंट ऑफ द असेट इज लेस देन कैरिंग अमाउंट तो इम्पेयरमेंट लॉस रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। और इम्पेयरमेंट लॉस का अमाउंट क्या होगा? दैट विल बी द डिफरेंस ऑफ कैरिंग अमाउंट एंड रिकवरेबल अमाउंट। मतलब जो अमाउंट सपोज कीजिए मेरे बुक्स में 100 रुपए पे खड़ा है, लेकिन उसको मार्केट में अगर हम बेचने जाएंगे तो मेरे को 80 ही रिकवर हो सकता है, तो बोल रहा 20 रुपीज का इम्पेयरमेंट लॉस रिकॉग्नाइज कीजिए। तो अभी इस केस में देखिए, रिकवरेबल अमाउंट हम लोग निकालते हैं फेयर वैल्यू या वैल्यू इन यूज विचएवर इज हायर, एंड वैल्यू इन यूज निकलता है दैट इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एस्टिमेटेड फ्यूचर कैश फ्लोज। सिंस हमारा कोविड-19 के कारण फ्यूचर कैश फ्लोज इंपैक्टेड होगा तो हमारा रिकवरेबल अमाउंट भी इंपैक्टेड होगा। तो अगर ये रिकवरेबल अमाउंट इंपैक्टेड होगा तो हमारा इम्पेयरमेंट लॉस का इंडिकेटर है, क्योंकि सिंस हमारा फ्यूचर कैश फ्लोज इंपैक्ट हो रहा है तो हमारा रिकवरेबल अमाउंट जो है डिक्रीज करेगा, एंड दिस इज एन इंडिकेटर फॉर इम्पेयरमेंट। सो एंटिटीज को अभी हर एंटिटीज के लिए एक ये इम्पेयरमेंट का इंडिकेटर है और एंटिटीज को अभी इम्पेयरमेंट का टेस्टिंग करना पड़ेगा, एंड इफ इम्पेयरमेंट के उसके बुक्स में आ रहा है तो इम्पेयरमेंट लॉस को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। तो आप लोगों ने पूछा कि हम लोग जो इंपेयरमेंट इंडिकेटर्स करें वो किस बेसिस पे असर्टेन करें अभी के सिनेरियो में, देखते हैं। तो पहला देखिए, अभी इकोनॉमिक एक्टिविटी में कॉन्ट्रैक्शन आई है बिकॉज लॉकडाउन है तो पूरा बिजनेस शटडाउन है, तो हमारा कैश फ्लोज को इंपैक्टेड होगा। डिस्काउंट रेट जो हम लोग वैल्यू इन यूज को प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं तो अभी डिस्काउंट रेट भी इंपैक्टेड होगा, क्योंकि डिस्काउंट रेट क्या होता है? रिक्वायर्ड रिटर्न बाय द एंटिटी। तो अभी रिक्वायर्ड रिटर्न चेंज हो जाएगा अगेन। फिर हम लोग इंड एस 113 जो फेयर वैल्यू की बात करता है उसमें एक कॉन्सेप्ट है मोस्ट एडवांटेजियस मार्केट का। तो मोस्ट एडवांटेजियस मार्केट क्या होता है?
किस मार्केट में जो असेट है, सपोज कीजिए मेरे पास असेट है 100 रुपए का, अगर हम उसको बेचने जाएंगे तो किस मार्केट में मेरे को सबसे ज्यादा बेनिफिट होगा, तो अभी वो भी चेंज हो जाएगा। तो ये सब चीज को असेस करना पड़ेगा कंपनीज को अपने केस टू केस बेसिस में कि उनपे वो इम्पैक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो उसका इंपेयरमेंट लॉस रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा और डिस्क्लोज करना पड़ेगा अपने बुक्स में स्पेसिफिक फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस जो उसका assumptions को चेंज किया और इंपेयरमेंट लॉस कितना हुआ, इफेक्ट उसको अपने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में उसको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। लेट्स मूव टू सेकंड पॉइंट which is inventory measurement. So inventory measurement इन डेज 2 से गवर्न होता है। इन डेज 2 बोलता है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री शुड बी लोअर ऑफ कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू। सी अभी लॉकडाउन हो रखा है और मार्केट पूरा शट डाउन है यहाँ पे, तो अभी इस केस में क्या हो रहा है कि बहुत सारी कंपनीज का या तो सेल्स एकदम ही नहीं हो रहा है, हो भी रहा है तो बहुत कम हो रहा है, तो इन्वेंट्री जो है उसका नॉन मूविंग हो गया है। तो अपना एटलीस्ट कंपनीज क्या करेगी यहाँ पे कि एटलीस्ट उसका इन्वेंट्री एटलीस्ट मूव होते रहे, तो बहुत हाई डिस्काउंट्स दे रही है, बहुत हाईयर डिस्काउंट देके एटलीस्ट इन्वेंट्री मूव करा के, सपोज कीजिए कोई पेरिसेबल आइटम्स है, उसका लाइफ ऑफ इन्वेंट्री ही 15 टू 20 डेज है। इन्वेंट्री समझ रही है ये बात कि अगर 15 टू 20 डेज में हम इस इन्वेंट्री को नहीं बेचे तो वो मेरा 100% लॉस हो जाएगा। तो एटलीस्ट इन्वेंट्री वांट्स टू रिकवर एटलीस्ट द कॉस्ट, या जितना भी रिकवर हो रहा है डिस्काउंट पे दे देके वो रिकवर करना चाह रही है। तो उस केस में क्या हो रहा है, जो नेट जो सेल वैल्यू हो रहा है समटाइम्स गोज बिलो द कॉस्ट प्राइस, सो द नेट रियलाइजेबल वैल्यू विल बी लोअर देन द कॉस्ट। सो ये यहाँ पे अगर ऐसा कुछ होता है तो हमें ये अमाउंट को डिस्क्लोज करना पड़ेगा कितना राइट डाउन ऑफ द इन्वेंट्री हो रहा है। तो हम लोग जब वैल्यूएशन करेंगे तो उसमें उस केस में कॉस्ट और एनआरवी विचएवर इज लोअर होता है। सिंस एनआरवी इज लोअर देन द कॉस्ट इन दिस केस, तो valuation of the inventory will be valued at NRV, that is net realizable value, and the difference of the cost and net realizable value should be disclosed in the financial statements, because paragraph 98A of Ind AS 1 asked us to disclose any write down of inventories. और एक पॉइंट और इन्वेंट्री के केस में हमें नोट करने का है, वो है कि सपोज कीजिए जो एंटिटीज है उसको अपने प्रोडक्शन में एक फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स इनकर करती है और एक वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स इनकर करती है। तो वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स जो होता है वो प्रोडक्शन जितना होगा उसी पे डिपेंड करता है, लेकिन फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स है वो प्रोडक्शन पे डिपेंड नहीं करता है। वो अपना सपोज कीजिए मेरा रेंट है या कुछ भी है, वो एक लेवल तक अगर 1 लाख रुपीज पर मंथ लग रहा है तो आप प्रोडक्शन करें या ना करें वो 1 लाख रुपीज लगते रहेगा। तो अगर वही इसमें बोल रहा है कि उसको जो 1 लाख रुपीज को हम लोग को नॉर्मल कैपेसिटी ऑफ द फैक्ट्री में एलोकेट करना पड़ेगा, बट अभी के सिनेरियो में सिंस फैक्ट्री अपने नॉर्मल कैपेसिटी पे प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है तो आप ऐसा नहीं कर सकते। सपोज कि अगर नॉर्मल कैपेसिटी 1 लाख है, आप अगर अभी 10,000 बना रहे हैं तो अपने पूरा फैक्ट्री ओवरहेड्स को 10,000 में एलोकेट कर दें, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। आपको 10,000 में नहीं करना होगा, आपको 1 लाख में ही एलोकेट करना पड़ेगा और जो भी डिफरेंशियल पोर्शन होगा आपको उसको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में लेके जाना होगा। तो ये हो गया इन्वेंट्री का मेजरमेंट। हम लोग थर्ड में चलते हैं, इनकम टैक्सेस। सी इनकम टैक्सेस में इंड एस 12 में गवर्न होता है और इंड एस 12 में डेफर्ड टैक्स असेट्स के लिए एक बात बोलता है कि आप डेफर्ड टैक्स असेट्स को तभी रिकॉग्नाइज करेंगे कि व्हेन द एंटिटी इज सर्टेन कि वो उस डेफर्ड टैक्स असेट को रिकवर कर लेगा फ्यूचर में। अब बात यहाँ पे ये आती है कि रिकवर कैसे करेगा, तो इंड एस बोला रिकवर दो तरह से होना चाहिए, या तो फ्यूचर टैक्सेबल प्रॉफिट्स होना चाहिए, सफिशिएंट फ्यूचर टैक्सेबल प्रॉफिट्स, या फिर सफिशिएंट डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज होना चाहिए। अब इस कोविड 19 के कारण फ्यूचर टैक्सेबल प्रॉफिट जो होगा वो इंपैक्टेड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इंड एस बोल रहा है कि अगर फ्यूचर टैक्सेबल प्रॉफिट्स नहीं होता है एंटिटीज के पास, तो उसको अगर सर्टेनिटी नहीं है तो जो डेफर्ड टैक्स एसेट्स है उसको भी जो रिकॉग्नाइज है उसको भी डी रिकॉग्नाइज करना पड़ सकता है। सिंस कोविड 19 के कारण हमारा फ्यूचर टैक्सेबल प्रॉफिट्स इंपैक्टेड होगा, तो हमें केस टू केस बेसिस एंटिटीज को यहाँ पे ये डिटरमाइन करना पड़ेगा जो भी डेफर्ड टैक्स एसेट्स उसके बुक्स में रिकॉग्नाइज्ड है वो उसकी रिकवरेबिलिटी सर्टेन है या सर्टेन नहीं है। आर देयर सफिशिएंट फ्यूचर टैक्सेबल प्रॉफिट्स अवेलेबल टू द एंटिटी व्हिच विल हेल्प अस टू रिकवर द डेफर्ड टैक्स एसेट्स इन द फ्यूचर। अगर वो सर्टेन है तो जो रिकॉग्नाइज उसको रिकॉग्नाइज रहने दीजिए, अगर वो सर्टेन नहीं है
तो रिकॉग्नाइज डेफर्ड टैक्स एसेट्स को डी रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा इस केस में, कोविड-19 के केस में। अगेन ऑल these assessments have to be done on the case to case basis for all the entities. Fourth point, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। सो ये इंड एस 16 से गवर्न होता है, एंड इंड एस 16 बोल रहा है दैट मैनेजमेंट नीड्स टू असेस द यूजफुल लाइफ एंड रेसिडुअल वैल्यू ऑफ द असेट एट ईच रिपोर्टिंग डेट। सो यहाँ पे कोविड 19 के कारण रेसिडुअल वैल्यू ऑफ द असेट इंपैक्टेड हो सकता है, क्योंकि अभी मार्केट पूरा शटडाउन है, असेट्स के वैल्यू हो सकते हैं अभी गिर जाएं। अगेन डिपेंड ऑन द केस टू केस बेसिस, तो यहाँ पे मैनेजमेंट को वो असेस करना पड़ेगा कि उसका रेसिडुअल वैल्यू अभी कितना है, एंड इफ देयर इज एनी चेंज द मैनेजमेंट नीड्स टू डिस्क्लोज द सेम। और अगेन यूजफुल लाइफ भी मैनेजमेंट को इंपैक्ट करना असेस करना पड़ेगा, क्योंकि अभी प्रोडक्शन बंद है, असेट्स यूज नहीं हो रहे हैं। अगेन इट विल डिपेंड ऑन केस टू केस बेसिस कि यहाँ पे अगर इंपैक्टेड हो रहे हैं तो यूजफुल लाइफ को भी उसको असेस करना पड़ेगा कि वो यूजफुल लाइफ करेक्ट है या नहीं है। So this completes our discussion on impact on accounting estimates. See again, जैसे हम लोगों ने अभी पढ़ा था, फेयर वैल्यू मेजरमेंट डिपेंड करता है मोस्ट एडवांटेजेस मार्केट पे, कि मोस्ट अभी हम लोग अगर बेचने जाएंगे उस एसेट्स को तो किस मार्केट में हम लोग को ज्यादा प्राइस मिलेगा, वो होता है मोस्ट एडवांटेजेस मार्केट, एंड अकॉर्डिंगली उस मार्केट के अकॉर्डिंग हम लोग अपना फेयर वैल्यू डिटरमाइन करते हैं। तो ये अभी इस समय पे ये इंपैक्टेड रहेगा, प्लस फ्यूचर फॉरकास्ट जो होता है वो भी अभी इंपैक्टेड रहेगा। तो इस कारण से हमारे फेयर वैल्यू मेजरमेंट पे भी अभी इंपैक्ट आएगा। तो हम लोग अपने इस टॉपिक को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, लीजेस, रेवेन्यू एंड बोरोइंग कॉस्ट्स। चलिए डिस्कस करते हैं वन बाय वन। लीजेस, सो लीजेस में अभी क्या हो रहा है, ड्यू टू कोविड 19 अभी जो भी लेसर्स हैं वो अभी या तो रेंट रिड्यूस कर देंगे या फिर रेंट हॉलिडे पीरियड दे देंगे अभी, ठीक है। तो ये जो भी चेंज हो रहा है लीज रेंट में, दिस वाज नॉट द पार्ट ऑफ द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट। और Ind AS 116 which deals with leases, it says any change in the lease contract which was not the part of the original contract should be treated as lease modification. सो अभी जो भी चेंज हो रहा है लीज के कार में, लीज के रेंट्स में, लीज पेमेंट्स में, वो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं था, तो ये लीज मॉडिफिकेशन बन जाएगा, एंड लीज मॉडिफिकेशन की अकाउंटिंग को अपने बुक्स में करना पड़ेगा लेसीज को। तो अब ये हो गया, एंड यहाँ पे एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है नोट करने का, कि अगर ये चेंज कॉन्ट्रैक्चुअल है तो ही हम लोग को उसको अपने बुक्स में उसको रिकॉग्नाइज करना है, बट एंटिसिपेटेड चेंजेस को अपने बुक्स में रिकॉग्नाइज नहीं करना है। मीनिंग देयर बाय कि जो ये रेंट हॉलिडे पीरियड है या फिर लीज पेमेंट जो रिड्यूस हुआ है, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट में चेंज, ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट में कुछ चेंज किया गया है अभी, तो ही होगा। मतलब बट अगर लेसी सोच रहा है कि नहीं ये तो चेंज हो जाएगा, लेसर को चेंज कर देना चाहिए, एंटिसिपेट कर रहा है कि चेंज होना चाहिए, तो उस केस में इसका अकाउंटिंग नहीं होगा। तो मेजर इंपैक्ट कहां आ रहा है लीजेस में? तो लीजेस में मेजर इंपैक्ट एक तो आ रहा है सिंस ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट का लीज टर्म्स चेंज, ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट्स में जो टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन्ड है वो चेंज हो रहे हैं, तो लीज मॉडिफिकेशन होगा। जो डिस्काउंट रेट हम लोग यूज कर रहे थे टू मेजर द फेयर वैल्यू ऑफ लीज लायबिलिटी, वो चेंज हो जाएगा। थर्ड, वेरिएबल लीज पेमेंट्स विच डिपेंडेंट ऑन द कैश फ्लो फ्रॉम द लीज्ड असेट, तो अभी सिंस अभी कैश फ्लो इंपैक्टेड है तो वेरिएबल लीज पेमेंट्स भी इंपैक्टेड रहेगा। सो ये हुआ लीजेस पे इंपैक्ट। सेकेंड पॉइंट है रिवेन्यू। देखिए अभी कोविड 19 के कारण अभी क्या हो रहा है, सिंस लॉकडाउन है तो या तो रिवेन्यू हमें पूरे बहुत ही ज्यादा गिर गई है, या फिर कुछ कुछ मैन्युफैक्चरर्स और ट्रेडर्स कर रहे हैं अपने रिवेन्यू को मेंटेन करने के लिए बहुत ज्यादा डिस्काउंट दे रहे हैं, बहुत ज्यादा डिस्काउंट दे रहे हैं। तो डिस्काउंट दे रहे हैं नॉट बिकॉज कि उसका वॉल्यूम ज्यादा बिक रहा है, बट बिकॉज कि उसका मूवमेंट होते रहे, इसलिए वो डिस्काउंट दे रहे हैं कि अपना इन्वेंट्री का मूवमेंट करा रहे हैं एटलीस्ट वो लोग। और अभी क्या हो रहा है, जो सेल हम लोग कर भी दिए थे उसका सेल्स रिटर्न्स भी हो रहा है, क्योंकि जिसको हम लोगों ने सेल किया था वो फर्दर सेल नहीं कर पा रहा है, इसलिए हम लोग को सेल रिटर्न भी आ रहा है यहाँ पे। सो यहाँ इस केस में एंटिटीज को अपने रेवेन्यू में जो जो इम्पैक्ट हो रहा है, रेवेन्यू का में जो इम्पैक्ट है कोविड 19 के कारण, वो डिस्क्लोज करना पड़ेगा।
प्लस एंटिटीज को यहाँ पे ये भी एसेस करना पड़ेगा कि जो क्रेडिट सेल्स किया था उसने, और उस क्रेडिट सेल से जो हमारा ट्रेड रिसीवेबल्स बना था, उस ट्रेड रिसीवेबल्स का रिकवरेबिलिटी पे क्या इंपैक्ट है कोविड-19 के कारण। बिकॉज जो ट्रेड रिसीवेबल्स है उसका रिकवरेबिलिटी बहुत ही भी हाईली इंपैक्टेड हो सकता है, क्योंकि जिसको हम लोगों ने सेल्स किया था उसका फर्दर भी सेल्स नहीं हो रहा होगा, तो उसके पास भी कैश फ्लो का प्रॉब्लम होगा, तो हमारे इसमें रिकवरेबिलिटी में प्रॉब्लम है। तो अप्लाइंग एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस मॉडल, entities have to assess their recoverability and thereby create a provision for the same. Third thing is borrowing costs. सो बोरोइंग कॉस्ट में क्या होता है, फॉर क्वालिफाइंग असेट, जो अगर जिस समय पे अभी जो क्वालिफाइंग असेट का डेवलपमेंट सस्पेंडेड होता है, तो उस पीरियड के लिए वो इंड एस बोल रहा है कि आपका कैपिटलाइजेशन ऑफ इंटरेस्ट कॉस्ट भी सस्पेंडेड रहना चाहिए। तो अगर इस केस टू केस बेसिस में आपको असेस करना पड़ेगा, जिस कंपनी की अभी डेवलपमेंट सस्पेंडेड है उसको, वो उस पीरियड के लिए इंटरेस्ट कॉस्ट को कैपिटलाइज नहीं कर सकती है, और अगर किसी एंटिटीज ने अभी डेवलपमेंट सस्पेंड नहीं किया है तो वो कैपिटलाइज कंटिन्यू करते रहेगी। बेसिकली यहाँ पे ये असेस करना है कि असेट का डेवलपमेंट सस्पेंडेड है या नहीं है। अगर है तो इंटरेस्ट कॉस्ट भी कैपिटलाइज नहीं हो पाएगा, अगर सस्पेंडेड नहीं है, डेवलपमेंट जारी किया गया है, तो उस केस में इंटरेस्ट कॉस्ट भी कैपिटलाइज हो सकेगा एज इट इज। Again, all these assessments has to be done on a case-to-case basis. तो ये हमारा था डिस्कशन ऑन द इम्पैक्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। Hope you have understood the impact of COVID-19 on financial statements. But beyond all these things, there should be no reason to despair. With right attitude and right priorities and drawing India's best talent, India will fight this disease and defeat it and come out of this with flying colors. As the saying goes by, every cloud has a silver lining. Stay home, stay safe. Thank you.